Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Assalamualaikum, sir. Assalam. So, anything to showcase, or shall I proceed towards this online reputation management? Or if you guys want to showcase something, we can discuss on it. All right. So today we will be talking about reputation management. So more or less reputation management or online reputation management, the term itself is basically depicts or showcase that reviews matters a lot, or user generated content. When we say reputation management, it means to say the brand value of any company or an individual. Okay. So that is what we'll be discussing today. So online reputation is influenced by what you post and what individuals, groups, and search engines results reveals about you online. So whatever be the kind of content that you post, and what is the result of if someone searches something online, so what it appears. Okay. So more or less, it appears the content which is being posted by you or by others related to you online. So everything, whatever be the outcome of it, which actually influence your reputation, your positivity, or your stand online in the views of users. So online reputation management involves a combination of marketing, public relation, legal, search engine, everything. So whatever you do, be it promoting your own website, be it publishing any article, writing a blog, or commenting here and there related to your product or services, that actually put together, we call it reputation management or your reputation. Public relations, where there are PR websites. Say for example, any news related to you gets published on any of a print or digital media. So if it gets published on print media, of course it has very short memory, but since more or less almost all news media or PR प्लेटफॉर्म्स, बी इट ऑफलाइन, कोई भी मैगजीन है वो ऑफलाइन में हो रहा है, पब्लिश हो रहा है, या कोई न्यूज है जो आपके किसी न्यूज वेबसाइट पे पब्लिश हो रहा है या न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रहा है, बट चूंकि सब कुछ आज की डेट में ऑनलाइन कनेक्टेड है, सो इवन इफ कुछ भी अगर पब्लिश हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं सर्च इंडेक्स में पड़ा रहता है, राइट। सो इसको डिस्कस करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका बिजनेस इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, इफेक्ट होता है, राइट। सो अगर कोई आपके बारे में फॉल्स स्टेटमेंट या एम्बेरसिंग स्टेटमेंट पब्लिश कर देता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि आप उसको डिलीट करें। आप डिलीट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और वो हमेशा हमेशा के लिए या फॉर अ लॉन्गर टाइम वो ऑनलाइन प्रेजेंस पे मौजूद रह जाता है, राइट। सो उस तरह की चीजों के लिए हमको करना क्या है कि हमको कंटिन्यूसली अपने बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, ब्लॉग्स पे पोस्ट करना है, गूगल माई बिजनेस के ऊपर पोस्ट करना है, पॉजिटिव रिव्यूज पोस्ट करना है, या फिर अपने पर्सनल वेबसाइट्स, मल्टीपल पर्सनल वेबसाइट्स बना के उसको पुश करना है, या कंपनी से रिलेटेड स्मॉल या माइक्रो वेबसाइट बना के आप पॉजिटिव कंटेंट्स को पुश कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज समझने की बात यह है कि आप नेगेटिव कंटेंट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिलीट नहीं कर सकते हैं।
तो आप क्या करेंगे, आप अपने पॉजिटिव कंटेंट्स को इतना ज्यादा पब्लिश करेंगे, इतना ज्यादा प्रमोट करेंगे कि धीरे धीरे वो निगेटिव कंटेंट कहीं नीचे की तरफ पुश हो जाए, फ्रॉम पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 टू पेज नंबर 3, वो धीरे धीरे करके पुश होना शुरू हो जाए। और वही आप कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं कि आप कहीं पे अपना कोई अगर निगेटिव डाला है तो आप वहां पे उसका रिप्लाई कर सकते हैं, बट स्टिल दैट क्वेश्चन, दैट कंटेंट विल रिमेन देयर इन द on in the online digital space, right? So why it is so important, very prominently being said, the internet does not forgive, in the sense it does not forget, and its influence continues to grow. तो ना जो निगेटिव कंटेंट है उसको फॉरगिव किया जा सकता है, ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो चीज भूला जा सकता है। क्या होता है कि उसका इन्फ्लुएंस कंटिन्यूसली ग्रो होता रहता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो, वो बढ़ता ही रहता है, राइट? सो नेगेटिव ऑनलाइन कंटेंट हैज डिस्ट्रॉयड रिलेशनशिप, डिवास्टेड करियर्स एंड रूइंड बिजनेसेस, राइट? तो अगर किसी इंडिविजुअल के बारे में नेगेटिव रिव्यू अगर है इंडिविजुअल के बारे में, तो उसका करियर पूरी तरह से खराब हो जाता है और खत्म भी हो जाता है। कुछ बिजनेसेस के बारे में अगर नेगेटिव रिव्यूज हैं तो बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं, राइट? तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, जितना भी अब तक हम लोग पढ़े हैं वो मार्केटिंग के लिए है कि हम कैसे अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिजिटल यूजर्स को। लेकिन उसका दूसरा साइड ये है कि अगर यूजर्स आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कोई भी ऐसी चीज अगर पोस्ट करते हैं जो कि आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। और उसका बाइंग और यूजर जनरेटेड कंटेंट, जिसको यूजीसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसका बाइंग बिहेवियर के ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? तो इसलिए हमको ये देखना है कि हम किस तरह से हम इसको निगेटिव रिव्यूज को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन किस तरह से हम इसको डिमिनिश कर सकते हैं, किस तरह से इसके चमक को हम कम कर सकते हैं, उसके बारे में हमको देखना होगा, राइट? अगर हम ट्रेडिशनल पीआर अगर हम ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशन और पीआर की अगर हम बात करें तो वो टेम्पररी है। ट्रेडिशनल पीआर का मतलब ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर में आपके बारे में कोई नेगेटिव चीज आ रही है या किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव आ गया है, तो न्यूज़पेपर की शेल्फ लाइफ कितनी है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता। उसके बाद नई नई चीजें आती रहती हैं, हमारे शेल्फ पर से भी वो खत्म हो जाता है और हम धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। अगर आपको कोई चीज याद भी आए और जब आप सर्च कर रहे होते हो तो शायद वो न्यूज़पेपर या मैगजीन आपको नहीं मिलता है, वेरएज डिजिटल स्पेस में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट है, वो खत्म नहीं होता है, वो आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है, बट वो खत्म नहीं होता है। इसलिए ऑनलाइन रेपुटेशन के बारे में लोग बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, और कंपनीज और इंडिविजुअल्स जो जितना बड़ा, जैसे आप हम और आप सब जानते हैं कि अगर कोई सेलिब्रिटी है या बड़ा आदमी है, जो किसी भी चीज, कोई एक ऐसी चीज हो गई जो कि जिसके बारे में लोगों ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया, तो उसको रिमूव तो नहीं किया जा सकता, बट वो बहुत ज्यादा डिस्कशन में आ जाता है, राइट? वेयर एज अगर वही चीज अगर प्रिंट मीडिया में पब्लिश हुई हो तो शायद सब तक पहुंच भी नहीं पाता है और सबके सब उसके बारे में जान भी नहीं पाते, राइट? सो ऑनलाइन ऑनलाइन कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हमको बहुत ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। So, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको ऑनलाइन रेपुटेशन के बारे में, अपने ऑनलाइन कंटेंट जो कि दूसरे लोग आपके बारे में पोस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा गौर फिक्र करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, इट टेक्स मेनी गुड डीड्स टू बिल्ड अ गुड रेपुटेशन। बहुत लंबा वक्त लगता है गुड रेपुटेशन को बिल्ड करने के लिए, बट ओनली वन बैड वन लूज इट। तो एक छोटा सा किसी और का निगेटिव कंटेंट वो आपके बिल्कुल रेप्यूट को बिल्कुल खत्म कर देता है, राइट? अब हमको करना क्या है? इसके लिए हमको ये करना होता है कि हम इसको रेगुलर मॉनिटर करें।
अपने ब्रांड नेम के साथ। से फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी का नाम डिजिटोज है, तो मैं कंटिन्यूअसली रेगुलरली गूगल पे जाके या दूसरे सोशल मीडिया पे जाके डिजिटोज से रिलेटेड सर्च करूं कि क्या क्या कंटेंट पब्लिश हो रहा है, राइट। वहीं पे हम देख सकते हैं कि गूगल रिव्यूज को भी हम देख सकते हैं, नॉर्मल रिव्यूज को भी देख सकते हैं, ग्लास डोर पे लोग रिव्यूज डाल रहे हैं, कंज्यूमर कंप्लायंस के ऊपर रिव्यूज डाल रहे हैं। तो हमें कंटिन्यूअसली अपने डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड से अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को सर्च करते रहना है। उसके बाद एनालाइज करना है कि वो किस तरह का कंटेंट है, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव कंटेंट है या न्यूट्रल कंटेंट है देन इट्स ओके, बट अगर कोई नेगेटिव कंटेंट है तो या तो उसका आप रिप्लाई करें, यानी कोई भी अगर नेगेटिव रिव्यूज पोस्ट हो रहा है या नेगेटिव कंटेंट आपके बारे में पोस्ट हो रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड जरूर करें। रीजन ये है कि जब आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं तो उससे ये होता है कि यू आर सीरियस अबाउट इट एंड यू आर रेडी टू फेस द challenge that yes something has happened wrong but you are there to support, right। उसके बाद हमें तीसरी चीज ये करना है कि हमको इस तरह के ग्रुप्स या इस तरह के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है या डिस्कशन को क्रिएट करना है जो कि आपके रेपुटेशन को इन्फ्लुएंस कर सके, राइट। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हम सबको करना है। या तो आप अगर अपना इंडिविजुअल ब्रांड बना रहे हैं तो भी करना है, अगर आप किसी कंपनी के लिए ब्रांड बना रहे हैं तो भी आपको करना है, या फिर अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी के लिए भी करना है अगर आप अपने ब्रांड को बना रहे हैं, ओके। नाउ अगर कभी ऐसा होता है कि आपके साथ ये निगेटिव रिव्यू या निगेटिव कंटेंट कोई पोस्ट होता है, तो डोंट बी वेरी एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ आंसरिंग इट, राइट। यू बी हम्बल इन द सेंस आप सॉफ्टली उसको रिस्पॉन्ड करें, बिकॉज जितना ज्यादा आप एग्रेसिव रिस्पॉन्ड करेंगे उतनी ज्यादा ही आपके लिए ये दिक्कत होगा कि लोग उसको सच समझना शुरू करते हैं, राइट। फिर आपको ये भी देखना है कि आपकी ऑथेंटिसिटी उस जो नेगेटिव रिव्यू है या कोई भी कंटेंट जनरेट है उसकी ऑथेंटिसिटी कैसी है, ठीक है। तो आप अगर रिस्पॉन्ड करने में आप हम्बल हैं और उसको जेन्युइनली इमीडिएटली आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो पीपल फील दैट यस यू आर अवेलेबल, सो देयर कुड बी सम मिस एंड मैच। 100 या 200 आपके कस्टमर्स हैं, उसमें से एक या दो ने अगर कोई नेगेटिव रिव्यू डाला है तो आदमी कहता है यार ये समथिंग एज अ 1% है जो कि ओके है। वेयर एज अगर हम दूसरे फॉर्मेट में अगर हम देखें कि जहां पे ये चीज है कि भाई रेगुलर नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन योर बिजनेस। हमें ऑथेंटिसिटी भी देखना है कि वो फेक तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये चीज है कि यू हैव टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ दीज सोशल और अदर चैनल्स ऑन सम प्लेटफॉर्म सो दैट जितने भी नए पोस्ट हो रहे हैं वो आप तक उसका इंफॉर्मेशन पहुंचता रहे। यानी जैसे आप देखेंगे कि अगर गूगल अलर्ट के साथ अगर आप अपने अपने ब्रांड को या अपने नाम को इंटीग्रेट कर दें तो कोई भी नया कंटेंट अगर गूगल पे पब्लिश होता है तो आपको एक ट्रिगर आ जाता है, मेल आ जाता है कि समथिंग बीइंग पब्लिश रिलेटेड टू योर ब्रांड, राइट। दिस विल हेल्प यू टू मॉनिटर के कुछ तो हो रहा है, राइट। देन what you have to do, you have to keep researching about various things, you have to keep research about various efforts that to be made, right। उसके बाद आपको ये समझना है कि ये पूरे के पूरे प्रोसेस को, ये पूरे ऑनलाइन रेपुटेशन। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई निगेटिव आया है तभी आपको ये काम करना है। आप अपने पॉजिटिव रेपुटेशन को आप मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, जितने आप एक टास्क लिस्ट डिफाइन करेंगे कि आपको एक ब्लॉग हर फोर्टनाइट में आपको पब्लिश करना है, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिव्यूज आपको अपडेट करना है, या फिर किसी और से आपको रिक्वेस्ट करना है, या कोई टेस्टिमोनियल है जो कि वीडियो टेस्टिमोनियल हो सकता है, टेक्स्ट टेस्टिमोनियल हो सकता है, उसको पब्लिश करना है, राइट। तो ये ऑलवेज सेम नहीं रहता, यानी आपका रेपुटेशन जो आज है वही रेपुटेशन कल हो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कंटिन्यूअसली इसके पीछे काम करना पड़ता है। और ऑफ कोर्स वी नो ब्रांड कैन नॉट बी बिल्ट ओवरनाइट, ठीक है। जैसे एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ नाइट, ठीक है। तो ये हमको कंटिन्यूअस काम करना पड़ता है और
ये एक दिन में नहीं बनने वाली है, एक रात में नहीं बनने वाली है, तो इसलिए आपको कंटिन्यूअस इसके पीछे लगना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गूगल के अंदर जो आपको रेपुटेशन बिल्ड करना है, अपने कंपनी का जो पॉजिटिविटी बिल्ड करना है, वो आपको अभी से शुरू, यानी आपने वेबसाइट लॉन्च किया है तब से ही आपको वो एक्टिविटी शुरू करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी वेबसाइट बन गई है, आप लॉन्च कर दिए है, कमर्शियली आप मार्केट में आउट हैं, और उसके बाद आप इस चीज को लॉन्ग टर्म के लिए आप इस चीज को बिल्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमको मॉनिटर करना है तो हमको मॉनिटर क्या क्या करना है और क्या क्या प्लान करना है, राइट? तो व्हाट शुड यू मॉनिटर? पॉइंट नंबर 1, so what should you monitor? You should monitor about anything which is being published on digital platform related to your brand. आपकी कंपनी का नाम हो सकता है, आपका अपना नाम हो सकता है, क्योंकि कभी कभी प्रोप्राइटरी कंपनी होती है तो उसके अंदर क्या होता है, या छोटी कंपनी होती है तो ऑनर ऑफ द कंपनी इज ब्रांड ऑफ द कंपनी, ब्रांड मैनेजर ऑफ द कंपनी, राइट? तो कभी कंपनी के नाम से निगेटिविटी आती है, कभी कंपनी के ऑनर के नाम से निगेटिविटी आती है। तो आपको इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आपको सर्च करना है। कहाँ कहाँ सर्च करना है? ब्लॉग्स सर्च करना है, आपको सोशल मीडिया सर्च करना है, न्यूज पे देखना है, वेबसाइट्स पे देखना है, सर्च इंजिन में देखना है, वीडियोज में भी देखना पड़ेगा कि आपके लिए कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यूज तो नहीं आए हैं, राइट? तो आपको क्या क्या मॉनिटर करना है? तो आपको जितने डिजिटल सोर्सेज हो सकते हैं वो सारे के सारे मॉनिटर करना है। कहाँ मॉनिटर करना है? अब हम लोगों के लिए आसान है कि हम लिमिटेड प्लेटफॉर्म पे जाके चेक कर सकते हैं। गूगल पे चेक कर लीजिए, सोशल मीडिया में चेक कर लीजिए, हैशटैग चेक कर लीजिए, तो ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल होती हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या देखना है? आपको अपने या जो डिफरेंट डिफरेंट रिव्यूज के पोर्टल्स हैं, आपको उसको भी देखना है कि वहां पे आपके बारे में क्या रिव्यूज आ रहे हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका जो एक्स एम्प्लॉय है या करंट एम्प्लॉय है आपके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव पोस्ट तो नहीं किया है, राइट? सो नेगेटिव अगर कुछ पोस्ट हुआ है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? आपको पॉजिटिव customers who are currently engaged with you, request them to post something positive about you, right? तो जब ये, और ये रेगुलर ग्रो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने कोशिश किया और 10-10 रिव्यूज आ गए, फिर उसके बाद एक साल तक खामोश हैं, फिर उसके बाद फिर आपने कोशिश किया, फिर एक साथ आपके 10 और 20 रिव्यूज आ गए। वैसे नहीं करना, हमको धीरे धीरे अप्रोच करना है। हर दिन अगर या हर वीक अगर दो तीन अगर आपके रिव्यूज आते चले जा रहे हैं, पॉजिटिव कंटेंट पोस्ट होते चले जा रहे हैं, या अगर आपने कोई ब्लॉग पे कोई आर्टिकल पब्लिश किया है, वहां पे कोई रिक्वेस्ट करके या कोई अगर वहां पे पॉजिटिव रिव्यूज आपके आर्टिकल के बारे में पोस्ट करता है, दैट इज गुड। ओके, एंड सिमिलरली यूट्यूब का आपने अगर वीडियो अपलोड किया है तो वहां पे अगर कोई पोस्ट करता है तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी गुड इम्पैक्ट क्रिएटर फॉर यू। तो आपको ये सारी चीजें आपको मॉनिटर भी करनी है और कंटिन्यूसली इस एफर्ट्स को करना भी है। अब कैसे ऑनलाइन प्रेजेंस को कैसे किया जाए? तो जैसे आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है लिसन, गेज एंड एंगेज। सबसे पहले आपको लिसनिंग करना पड़ेगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है? उसके बाद उसके इंटेंसिटी को गेज करना पड़ेगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद आपको यूजर्स को और कस्टमर्स को एंगेज करना पड़ेगा, राइट? तो आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? आपको ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड फोरम के ऊपर जाके आप अपने बारे में पोस्ट कर सकते हैं, राइट? यू कैन पोस्ट अबाउट योर अचीवमेंट्स, यू कैन पोस्ट अबाउट योर वेरियस एक्टिविटीज। ओके, उसी तरह से कॉम्पिटिटर्स, और आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि उनके बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या पोस्टेड है, राइट? तो जहां जहां जैसी जैसी चीजें पोस्टेड हैं, आप भी अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप पोस्ट कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ऑनलाइन रिव्यूज जिस भी प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे है तो गूगल पे होना, ग्लास डोर पे है तो ग्लास डोर पे होना है, अगर आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे हैं, बुक्स बेच रहे हैं तो वहां पे होना है, फ्लिपकार्ट पे है तो फ्लिपकार्ट पे है, या और भी कोई भी पॉसिबल प्लेस है जहां के आप अपने कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं और उसके रिव्यूज को पोस्ट करवा सकते हैं, तो वो हो सकता है गूगल माई बिजनेस के ऊपर हो सकता है, राइट? उसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपको रिव्यूज के ऑप्शंस आते हैं। सो जस्ट डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन गूगल, बट ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन फेसबुक का रिव्यू है, या फिर फॉलोअर्स को बढ़ाने की बात है, लिंक्डइन की बात है, ट्विटर में है,
तो ये सारे एक्टिविटीज हमको रेगुलर करते करते रहना है। उसके बाद ब्लॉग्स लिखने भी हैं और ब्लॉग्स कमेंट भी करना है। एंड देन यू हैव टू कीप सर्चिंग कि कौन सा लिंक गूगल सर्च रिजल्ट में आ रहा है, कौन सा रिजल्ट में नहीं आ रहा है, राइट। आपको ये भी देखना होगा कि किस निगेटिव रिव्यूज का या किस रिव्यू का आपको रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपके लिए कोई पॉजिटिव रिव्यू आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में से कुछ लोगों ने हमारे गूगल रिव्यूज के ऊपर कुछ पॉजिटिव कमेंट पोस्ट किया है, देन आई रिस्पॉन्डेड इट। द मोमेंट यू रिस्पॉन्डेड इट शोज दैट यस यू आर पार्टिसिपेटिव। ऐसा नहीं है कि जो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स योर ग्रोथ यू आर इग्नोरेंट विद देम, राइट। सो हमको एक पॉजिटिव वे में उसको रिस्पॉन्ड करना है। अगर निगेटिव भी कोई किया है तो आप उसके ऊपर अटैक ना करें, राइट। डोंट गो वेरी एग्रेसिव, you have to be, you can write yes there might be some problem but I am available at so and so email number or phone number, you can reach me and we'll be happy to resolve it, right। या फिर वहां पे कुछ मिसहैंडलिंग हुआ था, I agree, apologize for that and then what next to be done that you have to। तो जब आपका ये लगता है कि आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो निगेटिव लिखा है वो शायद आपको पलट के कुछ बोले भी ना, बट वो उसकी शाइन, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा थोड़ा डिमिनिश होता चला जाता है, राइट। सो आपको करना क्या है, आपको फीडबैक के बारे में लोगों से कंटिन्यूस फीडबैक लेते रहना है। स्टेक होल्डर्स को एनालाइज करना है कि आपके पॉजिटिव रिव्यूज के लिए कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते रहना है। अगर आपके 100 सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट कीजिए तो शायद 4-5 लोग आगे बढ़ के आपके बारे में रिव्यूज करेंगे। बट अगर वो अनसेटिस्फाइड हैं तो देयर इज अ चांस कि वो सर्टेनली, एक भी अनसेटिस्फाइड होगा तो देयर इज अ चांस कि वो पोस्ट करने की बात करेगा। फिर आप उसको सॉट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आप देख लीजिए कि अगर आपका नेगेटिव रिव्यू आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगा कि आपके सर्विस के अंदर ये कमी है तो आप उसको पॉजिटिव वे में लेके आप अपने सर्विस को इंप्रूव कर सकते हैं। सो रेपुटेशन मैनेजमेंट जिसको कह रहे हैं या ऑनलाइन फीडबैक कह रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस केस में जब हमको ये देखना होता है कि भाई हम हमारे सर्विसेज के लिए, हम सर्विस की वजह से कहाँ पे लैक कर रहे हैं उसको हम इम्प्रोवाइज कर सकें। फिर उस चीज को इम्प्रोवाइज करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा या उस चीज को डिमिनिश करने के लिए, नेगेटिव रिव्यूज को सप्रेस करने के लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी के साथ आना पड़ेगा, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये साइकिल हमारा कंटिन्यूस साइकिल है। सिर्फ हमको ये नहीं करना है कि हम अपनी वेबसाइट बना दिए, उसको एसईओ कर लिए, गूगल में प्रमोट कर दिए, काम खत्म हो गया, नहीं। वहां से तो काम शुरू हो रहा है कि आपको आइडिया लग गया कि किस तरह से आप अपने डिजिटल प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, राइट। तो छोटे छोटे ब्लॉग्स, छोटे छोटे आर्टिकल्स, छोटे छोटे न्यूज बेस्ड कंटेंट आप जनरेट करके उसको कहीं ना कहीं पोस्ट करना शुरू करें, ठीक है। जब आप पोस्ट करने की बात करेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल प्रमोशन वेबसाइट्स, लॉट ऑफ पीआर वेबसाइट्स, फ्री पीआर वेबसाइट्स हैं, फ्री आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स हैं। तो आप गूगल कर लीजिए, लिंक निकाल लीजिए और उसके ऊपर अपने बारे में, अपने कंटेंट, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव पोस्ट करते रहें। आप लोगों ने जैसे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया, लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर भी आपको, जैसे मैंने बताया था कि वहां पे आप कोई आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, आप कोई कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म को भी अपने रीच और अपने कनेक्ट्स को बढ़ाने में यूज करिए। जितना स्ट्रेंथन करेंगे आप अपने पब्लिक प्रोफाइल को, सोशल प्रोफाइल को, उतना ही ज्यादा आपको बिजनेस जनरेशन में हेल्पफुल होगा। So what you have to do? You have to build your social networking profile, target multiple sites, ठीक है। बी ऑनेस्ट, अगर कुछ है तो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आप उसको रिस्पॉन्ड करें और आप बहुत ज्यादा अपने स्ट्रेंथ को एग्जैजरेट करके ना बताएं, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना बताएं, जो रियलिस्टिक है आप बताएं, ठीक है। एंड देन इन केस समथिंग हैपेंस, लिसन टू इट और ऑल्सो लिसन व्हाट पीपल आर एक्चुअली पोस्टिंग रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटर्स, राइट। और आप क्वालिटी कंटेंट आप पोस्ट करें। ऐसा ना हो कि आप 10, 20, 25 कंटेंट पोस्ट करें हर महीने और वो क्वालिटेटिव नहीं है, एक ही चीज को आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, वैसा ना करें। तो आपको करना क्या है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है और उसको फिर मार्केट करना है, राइट। सो
इस चीज को इंकरेज करने के लिए। ऑलवेज वेलकम कमेंट्स। फिर उसको मॉडरेट भी कर सकते हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं कि अगर आपके बारे में कोई रिव्यू डाल रहा है, जैसे लिंक्डइन है, अगर कोई रिकमेंडेशन डाल रहा है लिंक्डइन के ऊपर, अगर आपके लिए कोई भी कुछ लिखना चाहता है, रिकमेंड करना चाहता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। सो रिकमेंडेशंस अगर आपको पसंद नहीं आते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई रिकमेंड कर रहा है वहां पे, अगर आपके बारे में कुछ पोस्ट कर रहा है, रिव्यू पोस्ट कर रहा है, फेसबुक के अंदर रिव्यूज है, गूगल के अंदर गूगल रिव्यू है, लिंक्डइन के अंदर रिकमेंडेशंस आते हैं। तो अगर आपको आपके बारे में आपके प्रोफाइल के ऊपर कोई रिकमेंडेशन पोस्ट कर रहा है और अगर आपको उसका कंटेंट अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको पब्लिश ना होने दें, ठीक है। इफ यू डिक्लाइन दैट, इट विल नॉट गेट पब्लिश्ड ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। इफ यू एक्सेप्ट इट, इट विल गेट पब्लिश्ड ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। ओके, तो आपको थोड़ा सा वहां पे भी आपको प्ले करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद कमेंट पॉलिसी बना लें कि कोई भी कमेंट आ रहा है कितने टाइम फ्रेम में उसको रिस्पॉन्ड करना है, राइट। अब अगर आप स्कूल चला रहे हैं, अगर आप कॉलेजेस चला रहे हैं, या फिर कोई एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे रिव्यूज आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे। शायद पॉजिटिव कम आए, नेगेटिव ज्यादा आए, बट उसको एड्रेस करने की सलाहियत होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, चीजों को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, पीपल विल फील दैट you are very arrogant and you are not bothered about what others are doing. आप लोगों को ध्यान होगा, शायद आप लोग उस वक्त बहुत छोटे होंगे, मैगी का एक रिव्यू आया था ऑनलाइन, और उसके बाद जब उसके कंट्री हेड ने बहुत ही एरोगेंस के साथ उसको रिस्पॉन्ड किया, उस टाइम में क्या हुआ, इतना बड़ा वो ड्राइव चला कि मैगी हैड टू गो आउट फ्रॉम द मार्केट, और मैगी का पूरा स्टॉक मार्केट में बाहर फेंक दिया गया था। And again to regain that kind of sales, because मैगी का सब्स्टिट्यूट था ही नहीं मार्केट में उस टाइम में जब ये इवेंट हुआ था। तो उनको एक एरोगेंस था, नेस्ले का ये प्रोडक्ट है, उनको एक एरोगेंस था कि हमें कोई बीट नहीं कर सकता, राइट। 2 मिनट्स के अंदर ब्रेकफास्ट तैयार हो जा रहा है, एंड दैट वाज द फेवरेट प्रोडक्ट फॉर किड्स, दैट वाज द फेवरेट प्रोडक्ट फॉर मम्मीज, राइट। 2 मिनट के अंदर वो तैयार हो जाता था, बच्चे भी खुश, मम्मीज भी खुश, राइट। लेकिन जब वो एरोगेंस के साथ रिस्पॉन्ड किया गया उस प्रोडक्ट के क्वालिटी के ऊपर, तो क्या हुआ कि वो इतना बड़ा रिजेक्शन हुआ कि वो पूरा का पूरा मार्केट से बाहर चला गया, और फिर बहुत सारे नूडल्स की कंपनीज और बहुत सारे मैगी टाइप की कंपनीज मार्केट में आ गई। अब इतनी सारी कंपनीज आ गई कि मार्केट अपने आप में उसका शेयर जो है इधर इधर 4-5 कंपनीज की तरफ डिवाइड हो गया। जब सब कुछ क्लियर करने के बाद फिर से मैगी मार्केट में आया, तो अभी भी मैगी उस सेल को अचीव नहीं कर पाया जो कि उस टाइम में वो सेल था, राइट। बिकॉज तब लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, तो आप एरोगेंस के साथ रिस्पॉन्ड किए। जब आप एरोगेंसी के साथ रिस्पॉन्ड किए, तो लोगों ने आपको बाहर कर दिया, और अब इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं कि अब वो मार्केट शेयर गेन नहीं कर पा रहा है, राइट। तो इसलिए हमको अपने कमिटमेंट पॉलिसी की तरफ से हमको बहुत ही कमेंट पॉलिसीज की तरफ से हमको बहुत ही सोच समझ के चलना चाहिए कि हमको जो भी कमेंट आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है तो हमको एक्नॉलेज करना है, थैंक यू कहना है। अगर निगेटिव है तो हमको क्या करना है, हमको उसके बारे में अप्रोप्रिएटली हमको रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि आपका एक छोटा सा निगेटिव रिस्पॉन्स आपके बिजनेस को खत्म कर सकता है, राइट। और इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, आप अपने पोजीशन को, आप अपने सिचुएशन को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे क्वालिटी कंसर्न और क्वालिटी इशू आया है, तो आप कह सकते हैं कि सॉरी फॉर इट, वी आर वर्किंग ऑन इट्स इंप्रूवमेंट, और हम बहुत जल्द आपके सामने एक नए सॉल्यूशन के साथ और एक बेटर सॉल्यूशन के साथ हम आपके सामने आएंगे। तो उसके बाद हो सकता है कि कोई देखने के बाद कहेगा ओके फाइन यार, ही इज जेन्युइनली रिस्पॉन्डेड, देयर माइट बी सम जेन्युइन प्रॉब्लम, राइट। और फिर आपको ये क्रॉस ऑल सोशल मीडिया और ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको इसको इंप्लीमेंट करना है। Then blogging is something that we miss, but this is very important aspect of digital media, और बहुत ही आसानी से ये गूगल में इसका लिस्टिंग भी आ जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको कोई ना कोई एक ब्लॉग, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ब्लॉगर पे जा सकते हैं, वर्डप्रेस पे जा सकते हैं, या फिर विक्स पे ही आप साइट बना सकते हैं।
ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं, राइट। तो आप ब्लॉग क्रिएट कीजिए, लिखिए और उसको कंटिन्यूसली पब्लिश कीजिए, या फिर आपकी जो वेबसाइट है उसी के अंदर ब्लॉग का सेक्शन क्रिएट करके आप वहां पे ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेस रिलीज, कोई ना कोई न्यूज काइंड ऑफ थिंग, हो सकता है वो न्यूज हो सकता है वो न्यूज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल यू क्रिएटेड अ वेबसाइट, हर दिन 2 लाख वेबसाइट मार्केट में आ रहा है, राइट। तो ये कोई न्यूज नहीं है, लेकिन आप क्या कह सकते हो, आप थोड़ा सा इसको स्पाइस अप करके, थोड़ा सा इसके अंदर फ्रेग्रेंस, थोड़ा सा स्पाइस, थोड़ा सा मसाले लगा के आप ये कह सकते हो कि स्पेशल ओकेजन के लिए या स्पेशल कल्चर के लिए, स्पेशल ट्रेंड के लिए एक स्पेशल आपको एक लॉन्च कर रहे हैं, एंड लॉन्च के ऊपर आपको इतना % डिस्काउंट मिल सकता है, ये कर सकते हैं। तो इसको आप एक न्यूज बना लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पे जाके फ्री प्रेस रिलीज वेबसाइट्स आप सर्च कीजिए, वहां पे कुछ मिल जाएंगे, आप जो है उसके ऊपर पब्लिश कीजिए। और ये जो पब्लिकेशंस होते हैं ये गूगल में बहुत जल्दी फेच होता है, समटाइम्स मच फास्टर देन योर ओन वेबसाइट, ठीक है। तो इस तरह की चीजें करनी और पीरियोडिक आपको करना है, ठीक है। तो ये प्रेस रिलीज करना है, ऑनलाइन प्रेस रिलीज फॉर्मेट्स देख लेते हैं और उसको पब्लिश करना है, और फिर उसको आप सोशल प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने जब आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं या न्यूज पब्लिश कर रहे हैं, तो वहां कुछ ना कुछ कैची हेडलाइंस डालिए, कुछ ना कुछ ऑफर्स डाल दीजिए, सो दैट ये लोगों को इंगेज करे, कंटेंट को कम्युनिकेट करने में लोगों को इंगेज करे। ओके, वो जब होगा तो क्या होगा, सर्च इंजिन के अंदर भी, गूगल के अंदर भी वो लिस्टिंग्स आपके नजर आने शुरू हो जाएंगे, एंड आपको अपने प्रेस रिलीज से फायदा उठाना है, राइट। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया, ब्लॉग्स आप क्रिएट करें, आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स के सर्च करें, उसके ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश करें, प्रेस रिलीज की वेबसाइट्स को सर्च करके प्रेस रिलीज सबमिट करें। तो ये आपका कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या लिखें, तो आप वहां पे देखिए कि दूसरे लोग किस तरह से लिख रहे हैं, वो भी आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगा, राइट। अब एसईओ को आपको यूज करना है। अगर आपने ब्लॉग बनाया है तो वहां पे भी आपको पेज का टाइटल आपको देखना है, आपको पेज का डिस्क्रिप्शन देखना है, वो उसका एंकरिंग टैग आपको देखना है। तो ये सारी चीजें आपको देखते हुए आपको वहां पे पब्लिश करते रहना है। ओके, तो आपको एसईओ के बारे में भी देखना है, और you have to see that your content or your landing page or your pages are user friendly. Second, गूगल क्राउलिंग के लिए ये इफेक्टिव हो, तो ऐसा प्लेटफॉर्म आप चूज करें जिसके पेजेस गूगल में इजीली फेच हो जाते हैं, राइट। उसका टाइटल टैग यूज करिए, पेज कंटेंट है, ठीक है, और उसको सारे प्रोसेस के साथ यानी अलग अलग जगहों पे शेयर कीजिए, सो दैट उसकी लिंक बिल्डिंग और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। जितनी ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा आपकी वेबसाइट और आपके कंटेंट्स गूगल के सर्च इंजिन के अंदर इनलिस्ट होंगे। ये कुछ टूल्स हैं। एनीवेज मैं ये पीपीटी को आप लोगों को शेयर करूंगा, तो आप इन टूल्स को देख भी सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि कुछ टूल्स अपडेट भी हुए हैं, कुछ टूल्स नए ऐड भी हुए हैं, बट मोर और लेस आपको ये वो टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प करता है। अब ट्विटर से रिलेटेड है तो search.twitter.com पे जाएं, या ट्विटर पे जाके जो सीधा सर्च बार है वहां पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड्स पे देख सकते हैं, अलर्ट्स पे दे सकते हैं, ठीक है, ब्लॉग सर्चेज हैं, राइट। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, या फिर दूसरे ब्रांड्स के बारे में भी आप सुन और देख सकते हैं। ओके, अब ये कुछ टूल्स हैं जिसको कि आप देख सकते हैं, राइट। सोशल मेंशन है, बिटली है, सोशल 2 है, ट्विटर एनालाइजर है, तो ये सारे कुछ टूल्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, राइट, बट दीज आर सम ऑफ द टूल्स कि जहां पे आपको ये पता चलता है कि कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने उसको अपडेट किया है। तो इससे हमारे लिए बहुत ही सारे इंफॉर्मेशन, यूजर्स पर्सपेक्टिव इंफॉर्मेशन हमको पता चलता रहता है। ओके, नाउ फॉर एन इंडिविजुअल, जो काम हम एक कंपनी के लिए करते हैं, उसी तरह से हमको अपने अप्रोच के लिए, अपने लिए अगर हम अपना ब्रांडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है ना। एक यहाँ पे एक क्रक्स है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप अपने कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं एज ए फाउंडर नाउ, सो एज ए फाउंडर अगर आप कंपनी को लॉन्च कर रहे हैं, तो कंपनी का जितना ब्रांडिंग करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही जो फाउंडर है उसको भी अपना ब्रांडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज
शुरू में आपके सोशल वैल्यू से ही आपका ब्रांड का वैल्यू बढ़ना शुरू होता है, और आपके ब्रांड की वैल्यू को सीधा सीधा आपकी पर्सनालिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आप अगर फाउंडर भी हैं तो भी आपको अपने लिए, या फिर अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो भी आपको अपने लिए बेहतर है कि अपना कोई ना कोई डिजिटल प्रेजेंस बनाएं और कंटिन्यूअसली अपने प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करते चले जाएं, विच कैन हेल्प यू टू गेट अपॉइंटेड बाय सम ऑफ द गुड कंपनीज। कि लोग ये देख सकते हैं, हायरिंग कंपनी ये देख सकती हैं कि भाई यू आर बेटर देन समवन एल्स एज वेल। लोग सिर्फ अपने प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, आप कुछ सोशल प्रेजेंस के ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो पीपल आर लुकिंग फॉर डायनेमिक काइंड ऑफ पीपल रादर देन स्टैटिक पीपल। ओके, तो आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं, डजेंट मैटर कि आप .com या .in पे डोमेन लेके बनाएं, बट आप जैसे भी बनाना है बना सकते हैं। उसके ऊपर ब्लॉग कंटेंट्स डाल सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल्स, अपने पर्सनल प्रोफाइल्स को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, शेयर योर फोटोग्राफ्स, योर अकॉम्प्लिशमेंट्स, योर अचीवमेंट्स, एंड बी वोकल अबाउट इट। डोंट शाई। आपको शाई करने की जरूरत नहीं है कि अरे लोगों को पता चल जाएगा, क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, कुछ नहीं होना है। यू हैव टू बी इन द मार्केट, सो यू बी वोकल, keeping your identity the way that you want to present, you have to be that way. Answers other questions, आप दूसरों के क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हैं, या FAQs क्रिएट करके अपने तरफ से उसको भी आंसर कर सकते हैं। ओके, सोशल बुक मार्किंग प्रोफाइल्स के ऊपर जाके या शॉपिंग साइट पे जाके आप अपनी तरफ से रिव्यूज भी डालिए, गूगल पे रिव्यूज डालिए, इमेजेस पे रिव्यूज डालिए, लोकेशंस को लेके रिव्यूज डालिए। तो क्या होता है कि आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। और try to work on holistic approach rather than एक प्रोफाइल बिल्डिंग अप्रोच में लग गए तो बस उसी के पीछे लगे हुए हैं। across the platform you have to work towards that. okay, तो for a बिजनेस का, कंपनी का रेपुटेशन मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम उसके जो सपोर्टिव मेंबर्स हैं उनको अपने प्रोफाइल को भी इंडिविजुअली उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज कभी कभी कंपनी का वैल्यूएशन उसके फाउंडर मेंबर से बनता है, और कभी कभी फाउंडिंग मेंबर का रेपुटेशन कंपनी के रेपुटेशन से बनता है, राइट। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड। सो ओवरऑल कंक्लूजन, इफ वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में बी इन इट्स इन्फेंसी। अभी उतना इंडिया के अंदर अगर देखें तो लोग केयर नॉट फॉर्मेट में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि ओला या उबर से आप ड्रॉप करते हैं, आप ड्राइव जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो वो कहता है सर आप रिव्यू दे दीजिएगा, ठीक है। फॉर हिम ऑल्सो रिव्यूज मैटर्स। अमेजोन पे अगर आप कोई बुक या प्रोडक्ट परचेज करते हैं और आपने रिव्यू नहीं दिया तो कंटिन्यूसली उसके रिव्यू के लिए लिंक्स आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। आप कोई शॉपिंग मॉल में गए या कोई बड़े ज्वेलरी शॉप पे गए या कहीं और गए, आपने कुछ परचेज किया है तो वहां से आपको SMS भी आता है कि सर या मैडम आप प्लीज रिव्यू पोस्ट करें, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये है कि यूजर्स का कंटेंट, यूजर्स के रिव्यू, नेचुरल रिव्यू बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग होते हैं, बाइंग पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, यू हैव टू प्लान now to control your reputation in digital space. You will reap the benefit of for years to come. आप अभी से अपना काम शुरू करेंगे तो आपको सालों बाद तक इसके रिजल्ट्स आपको आते रहेंगे, राइट। तो आपको कंटिन्यूसली करते ही रहना है। ओके, यू शुड मेंटेन ए ट्रांसपेरेंट वॉइस ऑनलाइन, राइट। मतलब वॉइस ऑनलाइन का मतलब यहाँ पे है आप अपनी बातों को ट्रांसपेरेंसी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखते रहें। कभी आप क्लाइंट के बारे में पोस्ट किए, कभी आप अपने बारे में पोस्ट कीजिए, कभी कभी टीम के अकॉम्प्लिशमेंट्स को लेके पोस्ट कीजिए, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी ऑनेस्ट एंड रेलेवेंट, ठीक है। आप ऑनेस्ट ओपिनियन पोस्ट कीजिए और रेलेवेंट पोस्ट कीजिए, डोंट बी एरोगेंट अबाउट इट, राइट। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जो कि आपको करते ही रहना है। यू कैन इंश्योर दैट यू आर द फर्स्ट कंपनी योर कंज्यूमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स कंसीडर व्हेन परचेजिंग ए प्रोडक्ट। इतना ज्यादा आपको करना है ये सारी चीजें कि आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स ये समझें कि यू आर द प्रेफर्ड कंपनी with whom they should deal with rather than going to anyone else, ठीक है। वो कॉस्ट फैक्टर हो सकता है, वो क्वालिटी फैक्टर हो सकता है, वो कस्टमर इंगेजमेंट हो सकता है, कस्टमर हैंडलिंग फीडबैक हो सकता है। तो ये सारी चीजें करके
आप अपने कंपनी के रेपुटेशन को मेंटेन और बढ़ावा दे सकते हैं, और दैट इज मस्ट फॉर एनी कंपनी एंड एवरी कंपनी. Okay, that's all from my side. In case of any question, you can ask me, or related to any topic what we discussed today, you can ask about that. You can ask about any of the topic that we have discussed in the past. We can discuss that as well. Over to you guys. I think last night there was a message from Abdul Ghani, but that gentleman is not over here. He wanted to discuss something related to keywords on the website first, or the keyword source, but he's not over here. So anyone else has any questions to ask? Yes, sir. Yeah, Sir, Aditya. in games, mostly we have the ads, right? They are very influential and you cannot Right. skip them. So, do we get to post them with the same Google ads, or is there any other procedure for that? There are, I'm like say, there are a lot of ads which are coming, which you can post using Google ad platform, ठीक है, जिसको कि आप Google ad platform से टारगेट कर सकते हैं. बट देर आर अदर प्लेटफॉर्म्स, जैसे ट्रू कॉलर है, वो डायरेक्टली एड्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है. और जो एप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉल किया और कॉल जैसे ही खत्म होता है उसके बाद नीचे ऐड आ जाता है, राइट. वो जो ऐड आता है वो मोस्टली ट्रू कॉलर की तरफ से वो ऐड आता है. बट अगर दूसरे हैं, अगर आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं, वहां पे जो ऐड आ जाता है, तो वो देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स जो कि पब्लिशर का रोल प्ले करते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सर्च फॉर मोबाइल ऐप पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म. मोबाइल ऐप पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, वहां पे आप ज्वाइन करके आप अपने एड्स को पब्लिश कर सकते हैं. बट प्राइमा फेसी ये है कि गूगल के जरिए से मेजॉरिटी ऑफ द एप्स के ऊपर जो एड्स आते हैं वो गूगल के थ्रू आते हैं. नाउ अब यहाँ पे दो तरह का सिचुएशन है. एक तो एंड्रॉयड ऐप है, तो एंड्रॉयड ऐप पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100%, बट ऑलमोस्ट एड्स आर कमिंग थ्रू गूगल प्लेटफॉर्म. Whereas iOS की अगर बात करें तो आपको थोड़े कम एड्स दिख के आते हैं, बिकॉज iOS का अपना इंटरेस्ट है कि वो एड्स को ज्यादा प्रमोट या यूजर के डेटा को सेफ्टी के फॉर्मेट में बहुत ज्यादा देखता है. प्राइवेसी पॉलिसी iOS का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए आपको वहां पे बहुत ज्यादा एड्स नहीं दिखेंगे. Whereas एंड्रॉइड का जो है, चूंकि एंड्रॉइड इटसेल्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल, और फिर सारा डेटा उसके पास अवेलेबल रहता है, तो वहां पे आप उसके जरिए से आप पब्लिश कर सकते हैं. यू कैन टारगेट कैटेगरी बेस्ड एप्स. जब आप ऐप प्रमोशन के ऑप्शन को आप चूज करेंगे, तो वहां पे आपको कैटेगरीज भी दिखाएंगे, और समटाइम्स ये भी होता है कि आप किस ऐप पे पब्लिश करना चाहते हैं वो भी आप चूज कर सकते हैं. Sir, when we were enrolling for Google website, so you said that a postcard will come for confirmation in 12 days. Right. Yeah, there was no update about it. तो Means वहां we पे were- आप अदीबा, आपने जब आपका कंफर्मेशन था, तो वो SMS बेस्ड कंफर्मेशन था या पोस्टल कंफर्मेशन था? postal था. अच्छा, तो वहां पे एक बारी फिर से आप जाके री रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं, वैलिडेट करके, ठीक है. वैलिडेट योर बिजनेस का जो ऑप्शन आता है उसको फिर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं. और ये ध्यान रखिए कि वो आपका नाम और आपका एड्रेस अप्रोप्रिएट हो, जो कि आप, और ये एक बहुत ही सॉरी टू से बट बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि बाज मौके पे ये होता है कि पोस्ट कार्ड्स चलते हैं गूगल से, बट वो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं. उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बिकॉज बाज मौके पे जो पोस्टल सर्विस वाले होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट पोस्ट से ही आता, कोई कोरियर से नहीं आता, जो नॉर्मल गवर्नमेंट पोस्ट है उसी से आता है. बाज मौके पे हमारे पोस्टमैन मतलब इन चीजों को इतना लाइट लेते हैं, या कोई नहीं मिला है तो वो ऐसे ही उसको थ्रो करके चले जाते हैं. क्योंकि मैंने खुद अपने ऑफिस के इधर उधर वाले पोस्ट का ऑफिसेस को के लेटर को मैंने खुद रिसीव करके उन तक पहुंचाया है. मैं उनसे पूछा भी कि अगर हम नहीं मिलते तो क्या, अरे ये कोई इतना इंपॉर्टेंट थोड़ा ही है, तो गूगल की तरफ से आता रहता है. तो आप फिर से एक बार रिक्वेस्ट करके देखिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको मिले. नहीं तो आप चाहें तो कस्टमर सपोर्ट का वहां पे एक फोन नंबर आ जाता है, ठीक है. तो आप जब आप गूगल बिजनेस जनरेट कर रहे होते हैं, कस्टमर सपोर्ट का फोन नंबर आता है, आप चाहें तो उससे भी बात कर सकते हैं, गूगल कस्टमर सपोर्ट से भी बात कर सकते हैं.
आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने ट्राई किया था कि आपका जो गूगल मैप है वो गूगल में पब्लिश हो रहा है नहीं हो रहा है, ट्राई किया था सर्च करने का? यस सर। हाँ शहरियार, आपने आपने बताया था। बट हाउ अबाउट अदर्स? सैफ ने भी बताया था कि शायद वहाँ पब्लिश हो रहा था। ठीक है, सो एनीवन एल्स हैज ट्राइड? इफ नॉट देन ट्राई करिए। और आप ये भी देखने की कोशिश कीजिएगा कि जो आपने विक्स पे साइट बनाई थी, क्योंकि गूगल सर्च कंसोल से आपकी साइट वैलिडेट हो चुकी है, सबको मैक्सिमम को सक्सेस आ गया है, तो आप उसको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या इधर उधर उसको पोस्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, और मैं एक लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स, कुछ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स आज किसी टाइम पे मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा। तो आप लोग अपनी वेबसाइट, जो भी विक्स पे आपने वेबसाइट बनाई है, उन वेबसाइट्स पे सबमिट करने की कोशिश कीजिए। अगर वो सबमिट होता है तो क्या होता है कि आपका कंटेंट गूगल डेटाबेस में थोड़ा फास्ट ट्रैक पे फेच होता है, और एक बार फेच हो गया तो वो गूगल की लिस्टिंग में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब आप विक्स पे जाते हैं तो एसईओ के अंदर ही आप नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो एनालिटिक्स करके एक आता है। ठीक है, वहां पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपको आइडिया लगता है कि वहां पे कुछ ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप उसकी कोशिश करें कि भाई आप इधर उधर शेयर करना शुरू करिए, लोगों को मार्केट करना शुरू करिए। अगर हो गया है तब तो खैर कोई कोई बात ही नहीं है, वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी। बट ओवरऑल मैं आपको एक अपना खुद का शेयर कर रहा हूं, जो कि प्रैक्टिस के दौरान मैंने उस चीज को किया था, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से वहां पे आता है। ये आपके सामने मेरा जो विक्स का है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एनालिटिक्स में दिख के आ रहा है, यहाँ पे एनालिटिक्स है, और यहाँ पे दिख के आ रहा है साइट सेशन 7। ओके, तो ये आपको साइट सेशन दिख के आ रहा है, तो कितनी बार इसको लोगों ने, या मैंने ही खोला होगा या किसी और ने ओपन किया होगा, तो कितनी बार ये पेज खुला है। ठीक है, लास्ट विजिट वर्ड 9 सेकेंड, 4:54 पे ये खोला गया है, राइट। तो हम इसको रिपोर्ट के फॉर्मेट में भी हम देख सकते हैं कि क्या है, बट ये इतना ज्यादा डेटा नहीं है कि बहुत ही डिटेल रिपोर्ट देगा। तो इसलिए आपको शुरू के टाइम में यहाँ पे आपको एनालिटिक्स थोड़ा सा रिव्यूज, मतलब कितने सेशंस हुए हैं, कितने कितनी बार ये लोड हुआ है, वो चीज होगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि अगर कोई आपका फॉर्म फिलअप किया है तो यहाँ पे भी आपको फॉर्म दिख के आएगा। ओके, कि कौन कौन से लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे दो तो विक्स की तरफ से ही है कि वो डेमो देना चाहते थे, एक मैंने ट्रायल किया था तो उसका आया है। तो आपके फॉर्म के ऊपर अगर कोई फॉर्म फिल होता है, वो भी आपको डैशबोर्ड से ही पता चल जाएगा। और एक जो बहुत ही खास चीज है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कि यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, जिसके अंदर प्रमोशनल वीडियोस बनाने का भी, जैसे हम लोग कैनवा पे जाके बैनर्स बना रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ पे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड्स को भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सोशल पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, प्रमोशनल वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग को भी इस प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो आपको लोगो मेकर भी है। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत सारे प्लेटफॉर्म को, बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में आपको देता है। करना क्या है, आपको सिर्फ यूज करना है, और इसको कैपिटलाइज करते हुए आप, मतलब यहाँ से आप अगर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करते हैं, यानी यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से आप कनेक्ट कर देते हैं, तो क्रिएट करने के बाद ये डायरेक्टली आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं अपने, जैसे कैनवा से आप पोस्ट कर सकते हैं वैसे यहाँ से भी पोस्ट कर सकते हैं। बट कैनवा में कोई ईमेल मार्केटिंग टूल नहीं है, यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग टूल भी है। यहाँ पे आपको बैनर बनाने का भी ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपको दूसरे दूसरे एक्टिविटीज के लिए भी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, जगह मिल जाती है, जिसको आप रेगुलरली प्रमोट कर सकते हैं। ऐड ए ब्लॉग टू योर वेबसाइट, ठीक है, ब्रिंग विजिटर्स टू योर वेबसाइट, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, यानी पेड कैंपेन आप शुरू कर सकते हैं। एडिट योर बिजनेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको देता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, राइट। सॉरी, ट्राई कीजिए, बिकॉज जो ईमेल मार्केटिंग का ये टूल है,
चूंकि आपकी वेबसाइट यहीं पे मौजूद है तो आपके लिए आसानी होगा कि ट्रैफिक बिल्डिंग प्रोसेस भी आपके लिए आसान हो जाता है। अब हमको ये देखना है कि भाई चाहे विक्स को हम यूज करें ईमेल मार्केटिंग के लिए, या बैनर बनाने के लिए, लोगो बनाने के लिए, या कैनवा को यूज करें, या फिर मेलचिम्प को हम यूज करें। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप सारे वेरिएशंस को आप ट्राई कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर विक्स को यूज करते हैं और अगर आपको 2000 यूजर्स को ईमेल भेजना आपको फ्री में मिल जाता है तो 2000 यहाँ से भेज सकते हैं, 2000 आप मेलचिम्प से भेज सकते हैं, और दूसरे प्लेटफॉर्म से भी आप भेज सकते हैं। तो आपको अपनी मार्केटिंग को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। लेट मी नो अगर कोई और क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर करूं, अदरवाइज वी विल फिनिश ऑफ फॉर टुडे। या दीबा, टेल मी। सर लास्ट टाइम जब हम फेसबुक एड्स पोस्ट कर रहे थे सर आप, तो वो टाइम पे सर आप कुछ मतलब प्रीमियम पेमेंट करके रखे थे क्या? क्योंकि आप यू वर पोस्टिंग 2-3 एड्स। हाँ, हमारा हमने चूंकि हमारा कैंपेन चलता रहता है तो वहाँ पे हाँ, बजट तो था। सर वो क्या ऐसा कुछ ऑफर रहता है क्या जो डिस्काउंटेड रेट में यू कैन नहीं 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 नहीं, लिमिटेड कोई एड्स फॉर 30 डेज? नहीं नहीं, ऐसा कोई ऑफर नहीं रहता वहाँ पे। फेसबुक तो कोई भी ऑफर नहीं देता है, तो हम चूंकि वो हम टॉपअप किए प्रीपेड फॉर्मेट में, हम वहाँ पे टॉपअप करके रखते हैं, या फिर अपना क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग उसके साथ कनेक्टेड रहता है, तो हम इजीली टॉपअप कर पाते हैं। तो कोई ऑफर तो ऐसा फेसबुक नहीं देता है। कोई और प्लेटफॉर्म पे भी नहीं है सर ऐसा ऑफर कि आप मंथली का कुछ नहीं कार्ड खरीद लिए? नहीं 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 नहीं। देखिए, गूगल जब शुरू हुआ था, यानी वे बैक इन 2002 की बात करूं मैं, तो जब शुरू हुआ था तो उस टाइम में इन्होंने पैकेज फॉर्मेट में ऑप्शन दिया था कि $200, $500 और $800 पर मंथ का पैकेज था। बट आफ्टर 2006 और 2008 उन्होंने पूरी तरह से DIY फॉर्मेट में कि आपको कोई पैकेज परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप जितना अमाउंट का बजट आप टॉप अप करेंगे उतने अमाउंट का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद तो कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो कि पैकेज फॉर्मेट में आपको सेल करता है। हाँ, कंपनीज आपको सेल करती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी तरह की कंपनीज होंगी, वो कहेंगे कि आपके इस पैकेज में ये चीजें कवर हैं, तो उसके अंदर वो एड बजट भी यूज कर लेते हैं, उसके अंदर आपको ऑर्गेनिक पोस्ट क्रिएट करते हैं या एंगेज करते हैं या प्रमोट करते हैं, वो सारी चीजें हो जाती हैं। बट मोर और लेस अभी कोई पैकेज फॉर्मेट में कोई प्लेटफॉर्म ऑफर नहीं कर रहा। Okay. Sir, now that we are almost about to end the course, so मैं ये पूछ रहा था कि कल के दिन अगर लाइक कोई अपॉर्चुनिटी है, लाइक ऐसा फ्रीलांस की अपॉर्चुनिटी है, तो हम कैसा अप्रोच ले, लाइक ऐसे क्या अप्रोच हो सकते हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज हम लैंड कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए जैसे मैं आज का जो क्लास था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि हमको अपना सोशल प्रोफाइल बिल्ड करना है। यानी सोशल प्रोफाइल डजंट मीन्स कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना शुरू करें। एनीवे यू गाइस आर इन द फोर्थ ईयर, जो कि आप लोगों का थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा, राइट? तो आप बहुत सारी जगहों पे अपने प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट बेस्ड जो वेबसाइट्स हैं, जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे भी आप अपने प्रोफाइल को बिल्ड करिए। इंटर्नशाला पे बिल्ड करिए, क्योंकि इंटर्नशाला पे बाज मौका पे अच्छी कंपनीज के आपको इंटर्नशिप मिल जाते हैं, और अभी के टाइम में तो ऑनलाइन इंटर्नशिप्स भी मिल रहे हैं, राइट? तो अभी से ही आपको उस चीज के ऊपर करना है। दूसरी चीज ये है कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को थोड़ा सा स्ट्रांग करके उसको उसके जरिए से जो डिसीजन मेकर्स हैं उन तक पहुंचना शुरू कीजिए। तीसरी चीज ये है कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, डजंट मैटर कि वो कितना सस्ता है या कितना महंगा है, वो आप करना शुरू करिए, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो भले अगर आप 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में ही कभी करना पड़ गया, तो करके उसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये सारी चीजें आपको एज ए फ्रीलांसर आपको प्रोजेक्ट फेच करने में काफी हेल्पफुल होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना बिजनेस प्रोफाइल बनाइए, एज ए इंडिविजुअल बिजनेस प्रोफाइल बनाइए, कि जिसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम कर सकते हैं, क्या आपके स्ट्रेंथ हैं, किस तरह का आपने सॉल्यूशन दिया हुआ है या किस तरह के सॉल्यूशन आप बिल्ड कर सकते हैं, क्या वैल्यू एडिशन आप दे सकते हैं। तो इसको क्रिएट करके जितना ज्यादा आप इसको सर्कुलेट करना चाहें उतना ज्यादा सर्कुलेट करिए। एक चीज है जो कि ज्यादातर लोग मिस करते हैं, वो सारे के सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाके लिस्ट तो करते हैं अपने आप को, लेकिन लिंक्डइन पे है जो कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस ग्रुप में
बहुत सारे लोग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए या लोगों को ढूंढते रहते हैं, आई एम लुकिंग फॉर लोगो एंड डिजिटल मार्केटर, लोगो मेकिंग एंड डिजिटल मार्केटर, या क्रिएटिव सर्विसेज कोई पोस्ट करता है, तो उन चीजों को रिस्पॉन्ड करके उन तक पहुंचना है। तो ये एक्टिविटी आपको करते रहना है, और जितना ज्यादा आप करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका प्रोफाइल धीरे धीरे करके पुश होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगा कि एक थोड़ा सा डिसेंट, आप लोग चूंकि सीएस बैकग्राउंड से हैं, तो एक डिसेंट वेबसाइट थोड़ा सा आप बना लीजिए, जिसके अंदर शोकेस कीजिए अपने सारे प्रोजेक्ट्स और स्ट्रेंथ को, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने काम कर रखा है वहां पे आप शोकेस कीजिए, डजंट मैटर कि कितना छोटा और कितना बड़ा है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ आइडिया लेना, आपको ई कॉमर्स साइट आप शायद ना बनाए हो, रीजन उसका ये है कि भाई उसके अंदर पेमेंट गेटवे भी होगा, प्रोडक्ट भी अपडेट करना है, सब कुछ करना है, लेकिन अगर आप रेजर पे को इंटीग्रेट करके अगर कुछ आप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो कम से कम जो आपको अप्रोच कर रहा है उसको ये आइडिया लग जाता है कि अच्छा, ही अंडरस्टैंड्स अबाउट इट, बट ही विल बी एबल टू डू इट प्रोवाइडेड गिवन द सर्टेन सिचुएशन, ठीक है। तो छोटा हो या बड़ा हो, आप असाइनमेंट्स के पीछे पड़ जाइए, जितना ज्यादा उसके पीछे पड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और पोर्टफोलियो एक अलग तरह का बनाइए, यानी ऐसा ना हो कि कोई बोले कि आपने कौन कौन, आप अपना पोर्टफोलियो भेज दीजिए तो हम 4 वेबसाइट का लिंक भेज दें, आपने किस किस के लिए काम किया तो बस हम 2-3 नाम भेज दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बाकायदा एक प्रॉपर पीडीएफ बनाइए, पीपीटी बना के उसको पीडीएफ में सेव कीजिए, और उसके बाद उसको शेयर करिए कि हु यू आर, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपने किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स को किया हुआ है, आपके एग्जैक्ट क्लाइंट क्या हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, पीपल फॉर हुम यू हैव वर्कड फॉर एज ए फ्रीलांसर, एज ए स्टेक होल्डर, उन चीजों को मेंशन करते हुए, और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लिखें तो उसका थोड़ा सा डिटेलिंग, क्योंकि इनिशियल लेवल पे क्या होगा कि आपके पास प्रोफाइल उतना नहीं होगा कि जो आप शोकेस कर सके। तो अगर मान ले कि एक वेबसाइट आपने बनाया है, तो उसके बारे में डिटेलिंग लिख दीजिए कि आपने उसमें क्या किया है, ये वेबसाइट इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसके अंदर इतने पेजेस हैं, इतने इतने सर्विसेज हैं, उसके अंदर आपने एसईओ इनकॉर्पोरेट किया, इन द सेंस टेक्निकल एसईओ, यानी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आपने किया है, साइट मैप आपने उसका बिल्ड किया है, और फिर उसका जो है गूगल वेरिफिकेशन करने के बाद ये गूगल में लिस्टिंग हो गया है, करके एक छोटा सा समरी। तो यूं कहते हैं कि हम सबको एक अपने रिलीजियस कॉन्सेप्ट से एक चीज सीखना चाहिए। आप लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया जरूर याद होगा, जो पॉपुलरली सुनते हैं, कि जब पहली बार मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने कोह तूर पे गए और उनसे पूछा गया, ऊपर से आवाज आई और उनसे पूछा गया, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, ठीक है। तो व्हाट ही डिड, एनीवन कैन एक्सप्लेन? आप लोगों को पता होगा, आप लोग काफी अच्छा जानते हैं ये वाकये के बारे में, तो पता है आप लोगों को कि कलाम करना यानी बात करना शुरू किया उन्होंने। आप ही बोल दीजिए सर। अरे नहीं यार, कुछ तो बोलो आप लोग, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, एक जिसको कहते हैं कि ही वाज स्पोक्स पर्सन, उनको बात करना, उनको ये है कि अल्लाह से बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने स्टोरी मेकिंग शुरू किया। मेरे हाथ में असा है, मैं इससे पत्ते झाड़ता हूँ, मैं इससे बकरियां चलाता हूँ, मैं इसको टेक लगाता हूँ, मतलब ही कुड हैव सेड कि मेरे हाथ में डंडा है। बट बात जितना प्रोलॉन्ग हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके सारे खूबियां बताना शुरू किया, एंड ही इंटेंशनली स्ट्रेच द कम्युनिकेशन टू अ लॉन्गर टाइम फ्रेम रादर देन जस्ट एक एमसीक्यू की तरह कि तुम्हारे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में डंडा है, खत्म। सो ही स्ट्रेच द कम्युनिकेशन। तो वही कॉन्सेप्ट हमको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये है कि जिसको कहते हैं तिल का ताड़ बनाना, कि अगर आपके पास छोटा सा भी काम किया हुआ है, नहीं भी किया हुआ है, तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि किस तरह का काम आप कर सकते हैं, उसको आप नरेट करके आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए, बिकॉज इट सेल्स, यही बिकता है। और प्रोमिनेंट सेइंग है, हम सब जानते हैं, जो दिखता है वही बिकता है, कि आपको आप कितना भी आप ये कहें कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं करके बता दूंगा, वो सारी चीजें अपनी जगह, बट थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में चले जाइए, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। कभी कभी हम अपने शुरू के दौर में करते थे, जब हमने अपना बिजनेस शुरू किया था वे बैक इन 2007-2008 में, हमारे पास कोई खास पोर्टफोलियो नहीं था। कोई कहता था कि भाई आपने कौन सी वेबसाइट्स बनाई हैं, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग सर्च करते थे और ये देखते थे कि लोकल वेबसाइट, बहुत ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट ना हो, लोकल वेबसाइट हो, नीचे डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय सो एंड सो ना लिखा हो। तो हम लिटरली उस तरह की वेबसाइट्स को कॉपी करके उसको भेज देते थे कि चलो यूएस का क्लाइंट है, इंडियन साइट है, हम उठा के भेज दिए।
या यूएस का क्लाइंट है तो चलो भाई हम मलेशिया की कुछ साइट उठाए उसको भेज दिए, यूके की कुछ साइट उठाए जिसमें डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय कुछ ऐसा ना लिखा हो, वो उठा के हम भेज देते थे। तो ये सारे थोड़ी बहुत काम जो है बाज मौके पे मैं ये नहीं कहता हूँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जस्ट नोट के इस तरह से थोड़ा सा कर लेने से हेल्प मिल जाता है। थैंक यू सर, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है इमरान सर का। आई एम लाइक ही वाज टॉकिंग अबाउट मीटिंग टुमारो। आई एम नॉट वेरी श्योर, इफ ही सेज देन विल सी, अदरवाइज एनीवे आई एम अवेलेबल ऑन ग्रुप। तो अगर आप लोगों को कभी कोई ऐसा डिस्कशन हो तो भी आप कर सकते हैं, और इफ यू वांट टू मीट मी डायरेक्टली तो आई एम अवेलेबल मोस्टली एट ऑफिस, जो लकड़ी के पुल पे है। अगर आप लोगों को आइडिया होगा तो चचाज रेस्टोरेंट जो है लकड़ी के पुल पे, एसी गार्ड्स चचाज रेस्टोरेंट वाली गली में ही है। एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर किसी को 1-to-1 भी मीटिंग करना है तो आ सकते हैं, मिल सकते हैं। आई एम मोस्टली अवेलेबल। ओके सर। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट गाइस। सर वन मोर थिंग, हाँ दीपा। हम फ्रीलांसिंग पे देखे थे डिजिटल मार्केटिंग में टिकटॉक की ज्यादा डिमांड है, मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया, क्योंकि वहां पे तो अभी भी यूज होता है ना जी फॉर टिकटॉक मार्केटिंग एंड एड। जी। तो अगर हम वहां का काम कर रहे तो इज देयर एनी वे के वी कैन डू दैट मार्केटिंग? अपने पास तो ऐप बैन है ना। हाँ तो हम कर सकते हैं। आप जैसे आप लोगों को मैं बताऊं कि बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी जो है, बहुत सारी एक्सेसिबिलिटी, आप लोग चूंकि थोड़ा सा टेक्निकल नो हाउ रखते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आईपी ब्लॉकर जो रहते हैं उसके जरिए से भी आप कुछ लेवल पे आप कुछ हद तक इस चीज को यूज कर सकते हैं। बट फिर भी क्या होता है कि एक लेवल के बाद जब आप करते हैं तो वो फिर फर्दर लेवल पे जाके वो ब्लॉक हो जाता है। तो थोड़ा सा लिमिटेशन है, इसलिए अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं उस चीज के अंदर, लेकिन हम उसको फुलफिल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोगों के पास भी कुछ इंक्वायरीज आई थी टिकटॉक को लेके, बट वी वर नॉट एबल टू डिलीवर बिकॉज वो ऐप हम प्रोफेशनली ये नहीं कर सकते। और हो क्या रहा है कि आईएसपी लेवल पे भी बाज मौके पे ये चीजें ब्लॉक हो जा रही हैं। तो थोड़ा सा लिमिटेशन तो है, बिल्कुल आपने सही कहा। बट हम अगर कुछ आप थोड़ा सा और गूगल करिए तो आपको ये मिल जाएगा, ऑफिशियली आई कैन नॉट डिक्लेयर दैट, बट आपको ये मिल जाएगा कि किस तरह से आप उन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करके डिलीवर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा आपको, बट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ऑल राइट गाइज, देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड रीच मी इन केस ऑफ एनीथिंग नीडेड। थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।